Hello students, I am Shweta Nanote and welcome back to my period of English. In the previous video we had seen a poem, It's a Small World. But now we are going to see the next poem. Before that I want to tell you that page number 3 to page number 8. Uh, there are some activities given for you to perform. There are some games also. 1.2 warm up with Tara and friends. This is the title of the lesson. And in this lesson, you have been given many activities and many games are there. But we are not together now, and that's why we cannot play these games now. Whenever we will meet in the school, we will definitely play these games. But for now, you have to open page number 9. Okay, here the title is the parts of speech. Parts of speech. I had already taught you last year. All the parts of speech have been taught to you. But this is a poem based on the parts of speech, so that you can recognize all the parts of speech. You should remember all these the names of parts of speech. That's why this is presented in front of you in the form of poem. Now, what you have to do? You have to first of all you have to repeat after me. I will teach you the tuning of this poem, and you have to repeat after me. So let us start. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell. Sorry, how things are done, the adverbs tell. As quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out hark. In the interjections cries out hark. I need an exclamation mark. Through poetry, we learn how each of these make up the parts of speech. फिर से एक बार बोलना है. Okay. Listen carefully and you have to repeat after me. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out, hark! I need an exclamation mark. Through poetry, we learn how each of these make up the parts of speech. पसंद है आपको? अच्छा लगा ना? तो इसे आपको बार बार दोहराना है, ताकि ये जो नेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम है, वो आपको लर्न हो जाए और किसको क्या बोलते हैं. इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. जो पिंक कलर में दिए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है, और जो ब्लू में दिए हैं वो उसके एग्जाम्पल्स है. अब देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा तो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करूंगी. यहाँ पे एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन. जिस किसी चीज का नाम जो होता है, किसी भी कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, या कोई चीज यानी थिंग.
या कोई आइडिया भी हो सकती है, या कोई फीलिंग भी हो सकती है जिसको हम कुछ नाम देते हैं, है ना। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है, तो हैप्पीनेस भी एक तरह से नाउन ही हुआ है। ब्रेवरी, शूरता, ये भी एक नाउन है, किसी चीज, किसी आइडिया को हमने ये नाम दिया है। तो ऐसे जो नाम होते हैं किसी पर्सन का नाम, जैसे राजू, लता, पिंकी, ये जो सारे नाम है ये क्या है, नाउन है। किसी एनिमल का नाम, जैसे बफेलो है, काऊ है, डॉग है, ये किसी पर एनिमल का नाम हो सकता है। उसकी उसी तरह हम किसी चीज का नाम भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, है ना, इस तरह से। और हो सकता है किसी जगह का नाम भी हो, जैसे हमारी नागपुर सिटी है, दिल्ली, मुंबई, या हमारी स्कूल जहाँ पे है लकड़गंज, तो किसी प्लेस का जो नाम होता है वो भी उसे भी नाउन ही बोला जाता है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। अगर हमें नाउन का बार बार रिपीट नहीं करना है तो हम उसकी जगह पे क्या लेते हैं, प्रोनाउन लेते हैं। जैसे राधा गोज टू स्कूल, राधा स्टडीज रेगुलरली, राधा इज अ वेरी क्लेवर गर्ल, राधा ओबेज हर पेरेंट्स। तो ये जो है इसमें हर बार राधा 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 हमने यूज किया है, पर ये हमें बार बार यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यूज शी। राधा की जगह पे क्या आएगा फिर, शी। तो वी हैव रिप्लेस्ड द नेम, द नाउन राधा विथ द वर्ड शी। तो इसलिए शी क्या हुआ फिर, प्रोनाउन हुआ। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर इज अ नाउन, बट व्हाट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है कि फूल कैसा है। उसका जवाब हमें किससे मिलता है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जंपिंग, रनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये जो है ये एक्शन दिखाते हैं ये वर्ड्स, और इसीलिए उनको वर्ब बोला जाता है, एक्शन वर्ड भी बोला जाता है। रीड, राइट, जंप, रन, ये जो है ये सारे क्या है, एक्शन वर्ड्स है। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल। अब देखिए जिस तरह से नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, उसी तरह किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। यानी एक्शन कैसे हुई है ये जो वर्ड हमें बताता है। जैसे रन, रन फास्ट, तो फास्ट जो वर्ड है हमने रन के लिए यूज किया है, और इसीलिए वो हो गया एडवर्ब। शी राइट्स नाइसली, शी राइट्स नाइसली। अब नाइसली जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया है, शी के लिए यूज किया है कि राइट के लिए किया है, राइट के लिए किया है, क्योंकि वो लिखती नाइसली है, उसका लिखना जो है वो नाइस है, और इसीलिए नाइसली जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसीलिए वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। जनरली क्या होता है, एल वाई वाले जो होते हैं ना वो जनरली, हमेशा नहीं बोल रही हूँ मैं, जनरली एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स। ये आपको नोट डाउन करना है। द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन जो बताता है किसी चीज की पोजीशन, या किसी चीज का रिलेशन, जो वर्ड्स हमें बताते हैं, इन, ऑन, आउट, ओवर, अंडर, अक्रॉस, उसके बाद बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये होते हैं प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस ज्वाइन इन मेनी वेज। दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कंजंक्शंस। जैसे और है, बिकॉज है, बट है, ये एंड है, ये सारे जो वर्ड्स है ये होते हैं कंजंक्शंस, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क। इंटरजेक्शन जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है वो अचानक कभी कभी बाहर आ जाती है। हम बोलते हैं ना, अरे रे बहुत बुरा हुआ, है ना, अल्लास ही इज डेड, oh shit, we lost the match, we lost the match, oh no, I missed the train। तो ये जो सारे oh no, oh shit, oh my god एकदम से हमारे मुंह से निकल जाता है, wow what a beautiful flower। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, wow,
alas, oh no, oh shit, ये सारे क्या है इंटरजेक्शंस. आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. पर ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनके साथ हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है. एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो आता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन देना पड़ता है. तो एक्सक्लेमेशन जहाँ पे दिखेगा वो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरजेक्शन है. थ्रू पोइट्री वी लर्न हाउ ईच. ये जो पोएट्री इसके लिए बनाई गई है ताकि आपको ये याद रह सके, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ आपको याद हो जाए, इसलिए ये पोएट्री बनाई गई है. और इस पोएट्री को आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको याद रहे. देखिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में इसलिए दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हर पार्ट ऑफ स्पीच को अलग सेपरेटली मुझे आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है. और पोएट्री होने के कारण पोएट्री में ये सब आया है इसलिए मुझे वो शॉर्ट में आपको बताना पड़ा है. बट आई विल टेक इन द डिफरेंट वीडियो ऑल these parts of speech. I am going to teach you in the I am going to teach you separately. Okay. So thank you so much. You have to learn this poem, and you have to remember all the parts of speech. Thank you.